Hello pupil teachers, we are back here again with another exciting video. In today's video, we are going to discuss about understanding level of teaching. Like in the earlier video, we have discussed about the levels of teaching where we majorly talked about memory level of teaching, which basically works on the basic level of education of the children and tries to transmit the knowledge and information or facts as it is. But let's now talk about the understanding level of teaching, where students do not just learn what, but also why and how. It is the foundation for developing deeper thinking and lasting knowledge. Understanding basically tries to develop all the comprehensions and the implementation of those knowledge and information in the students. So this level basically comes after the memory level of teaching. After going through the phase of recall and recognition, student immediately enters into the stage where he just starts understanding the concept, topic, ideas or thoughts and tries to implement those in the real life situations and settings. So let's move towards the topic and understand that what understanding level of teaching basically does to the students. Understanding, जैसे कि हम जानते हैं, it is the basic structure and it helps the learner to know about any meaning or any idea or any concept जिसमें वो उस आइडिया को सीख रहा है, समझ रहा है, आइडिया को ग्रास्प करने की कोशिश करता है. He tries to find out some relationship in the two concepts and he tries to comprehend what the fact and what the information is about, and on the basis of those gathered facts or ideas he tries to infer the conclusions or the findings from that topic. The propounder of this level of teaching basically is Herbert, and majorly he talked about his Herbartian theory of perception on which this level is quietly based. And इस theory में अगर हम देखें तो he basically mentioned that जो learner है उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है या उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो मेमोरी लेवल से बहुत ज्यादा हो चुका होता है. वो चीजों को समझना, जानना, पहचानना, डिफरेंशिएट करना, डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है. बच्चा जो है यहाँ पर वो सोचना, रीजन रखना, लॉजिक्स फाइंड आउट करना, लॉजिक्स प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, एनालिसिस के बेसिस पर किसी भी आइडिया को सिंथेसाइज करना या रिलेशनशिप्स में अलग अलग फैक्ट्स के साथ, अलग अलग प्रिंसिपल्स के साथ उनको इवेलुएट करना या फिर जस्टिफाई करना या वेरीफाई करना किसी भी चीज को. तो इतनी सारी चीजें जो बच्चा है एकदम से वो स्विच करता है मेमोरी से अंडरस्टैंडिंग में इनमें, और टोटल जो उसका थॉट प्रोसेस है, जो उसका पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट, वो चेंज हो जाता है. Now the elements of understanding level. The first element is aims and objectives. Memory level में हमने देखा था कि only one Bloom's taxonomy objective is covered there, but here we talk about the two objectives of Bloom's taxonomy, that is comprehension and application. Comprehend करना, comprehend में वो translation भी करेगा, explain भी करेगा, explore भी करेगा, वो क्लासिफाई भी कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, समराइज कर रहा है, दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को भी फाइंड आउट कर रहा है. जब सारी चीजें बच्चा कॉम्प्रिहेंड कर लेता है, सो उस कॉम्प्रिहेंशन का क्या बेनिफिट, एज वी टॉक्ड अर्लियर, यहाँ पे हम हाउ एंड वाई पे फोकस कर रहे हैं, क्यों हुआ और कैसे हुआ. सो ये अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, मैंने अगर किसी चीज में कोई डिफरेंस बताया, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, व्हेन आई विल अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इनटू द रियल सेटिंग्स. सो यहीं पे जो एप्लीकेशन है वो भी बच्चा साथ साथ करेगा, जहां पर वो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चीजों को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा. जो रूल्स, रेगुलेशंस, जो भी टर्मिनोलॉजी उसने थियोरिटिकली पढ़ी है उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेगा. जितने आइडिया
उसने सीखे हैं, समझे हैं, जाने हैं, उनको भी साथ साथ अप्लाई करके देखेगा। जब वो कॉम्प्रिहेंड करने के साथ साथ अप्लाई करेगा तो ये नॉलेज परमानेंटली उसके पास स्टोर हो जाएगी, और ये नॉलेज टाइम के साथ फेड नहीं होगी, क्योंकि उन चीजों को उसने खुद से परफॉर्म करके देखा है। नेक्स्ट एलिमेंट इज सब्जेक्ट मैटर। मेमोरी लेवल में जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर भी सेम ही सब्जेक्ट मैटर हमें मिलेगा, बट इन नंबर एंड इन क्वालिटी उसकी जो वाइडनेस है, उसका जो स्कोप है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चा पहले चैप्टर पढ़ रहा था जो 2 या 3 पेजेस का होता था चैप्टर, अब वो चैप्टर के पेजेस की लेंथ बढ़ चुकी है, कंटेंट की इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो चुकी है, सब्जेक्ट डिवाइड हो चुके हैं। सो सब्जेक्ट मैटर रहेगा तो यहाँ भी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मेथड्स की अगर हम बात करें तो लेक्चर मेथड is applicable at any level. Without lecture, without explanation, we cannot interact with the students in the classroom. So ये तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसके साथ टीचर डेमोन्स्ट्रेशन ऐड कर सकता है। In case the teacher has to perform some kind of experiments, some kind of practical concepts are there, so he can go with lecture come demonstration method, जहाँ पर वो परफॉर्म करके दिखाएगा कि एक्चुअली ये चीज कैसे वर्कआउट करती है। डिस्कशन मेथड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन एनी लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि डिस्कस करने से बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है क्लास के अंदर। एक सेशन जो है हमारी क्लास का वो इंटरेक्टिव और हेल्दी हो जाता है। सो डिस्कशन इज ऑल्सो मस्ट, एंड एट दिस लेवल ये तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम उन्हें डिस्कशन में इन्वॉल्व करेंगे उतना उनका क्यूरोसिटी एरिया इंक्रीज होगा, उतना वो डिस्कस करने में इंटरेस्ट लेंगे, उनका कॉन्सेप्ट या टॉपिक की तरफ जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ये भी बहुत अच्छा मेथड है किसी भी टीचर के लिए। इसे क्लास में यूज करने से बहुत इफेक्टिव आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं बच्चों की लर्निंग में, जहां पर हम जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल जाकर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चैप्टर एंड द नीड ऑफ द स्टूडेंट हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे इन फ्यूचर। एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल होना चाहिए, जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको साथ साथ एग्जाम्पलीफाई करें, एक्सप्लेन करें प्रॉपरली, सो दैट बच्चे को ये ना लगे कि मुझे एग्जाम्पल्स नहीं मिले, मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, जिसकी वजह से मेरा जो टॉपिक की तरफ क्लैरिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई। क्लासरूम क्लाइमेट, ये बहुत लाइवली और इनकरेजिंग होगा। अगर आप ऊपर वाले मेथड्स यूज कर रहे हो तो ये वैसे भी हेल्दी और लाइवली हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे प्रॉपरली अपनी क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं थ्रू क्वेश्चंस और थ्रू डाउट्स, वो अपनी चीजें रख रहे हैं, तो उनके लिए जो क्लासरूम क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा और हेल्दी हो जाएगा। जब वो इन्वॉल्व होंगे, जब क्लासरूम का क्लाइमेट हमारा लाइवली है, जब इंटरेक्टिव है वो क्लाइमेट, तो द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन विल ऑल्सो बी वेरी लेस। वहां पे हमें बच्चों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर वो अटेंटिव है, सुन रहे हैं, आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मोटिवेशन। हाँ, ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा या इंट्रिंसिक आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे मिक्स्ड हमें देखने को मिलेगा। समटाइम्स द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड बाय द टीचर टू लर्न और द पेरेंट्स टू लर्न। कई बार उनकी इंटरनल इंस्टिंक्ट्स उन्हें ये कहती है कि नहीं, उन्हें ये काम करना है, या आज ये मेरा टास्क है या मेरा असाइनमेंट है जो मुझे कर लेना चाहिए। सो वी कैन सी अ ब्लेंड ऑफ नेचर ऑफ मोटिवेशन इन दिस लेवल। टीचिंग इक्विपमेंट्स, यहाँ पर हम कोई भी इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हम मेमोरी में कर रहे थे जैसे सैंड, क्ले या कोई भी ऐसा रियल ऑब्जेक्ट, उनको यहाँ हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पर हम चार्ट्स, मॉडल, फ्लैश कार्ड्स, वीडियोस, टीवी, एक्सपेरिमेंट्स, उनका यूज ज्यादा करेंगे। इवैल्यूएशन, यहाँ पर जो टीचर का बेसिकली काम रहेगा इवैल्यूएट करने का, टीचर को बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन प्लस उसकी एप्लीकेबिलिटी स्किल्स दोनों ही चेक करनी है। कितना समझ में आया, कितना ग्रैस्प किया, कितना सीखा था, जितना वो सिंथेसाइज कर पाया, क्या अगर मैं उससे डिफरेंस पूछूं दो या दो से ज्यादा चीजों में तो वो बता सकता है या नहीं बता सकता। तो इन सारी चीजों के थ्रू जो टीचर है वो प्रॉपरली बच्चे को चेक करेगा।
टेस्टिंग यहाँ पर जो है वो रिटन ज्यादा होगी, वर्बल कम हो जाएगी। क्वेश्चंस भी अगर हम ओरली पूछ रहे हैं सो वो प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, नो वन वर्ड और नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी देयर। टीचर का रोल यहाँ पे भी प्रोमिनेंट रहेगा थोड़ा सा। हाँ, डोमिनेशन और अथॉरिटी जो है टीचर की कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चे का रोल इन्वॉल्व हो गया है। अब बच्चा इंटरेक्टिव है, बच्चा पैसिव लिसनर नहीं रहा है, बच्चा प्रॉपर जो है इंटरेक्ट कर रहा है, प्रॉपर वो अपने रोल में आ गया है। तो यहाँ पर टीचर का जो फिगर है वो थोड़ा सा फैसिलिटेटर, गाइडर के फॉर्म में ज्यादा देखने को मिलेगा, कि वो गाइड कर रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन डोमिनेट नहीं कर रहा है। रोल ऑफ द लर्नर, यहाँ पे जैसे हमने बात की कि बच्चा पैसिव लिसनर नहीं है, वो रिस्पॉन्स करेगा, वो एक्शन में आ चुका है, वो इंटरेक्ट भी करेगा, डाउट्स भी रखेगा, क्वेश्चंस भी रखेगा। सो बहुत सारी चीजें हैं जो इस फेज में आके बच्चे करने लग जाते हैं फॉर देयर स्टडीज, फॉर देयर नॉलेज और फॉर देयर एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो बहुत अच्छा हमें एक्टिव देखने को मिलेगा, रादर देन ओनली बीइंग पैसिव लिसनर। नाउ कम्स द एडवांटेजेस ऑफ दिस लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये बहुत इफेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व है, खुद से करके सीख रहा है, खुद सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। टीचर ने अगर क्लास में कम भी पढ़ाया है तो वो घर पर जाकर एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा है। सो द लर्निंग विल बी इफेक्टिव हियर। डिफरेंट कॉग्निशन एबिलिटीज भी डेवलप होंगी, कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ एनालिसिस भी आ रहा है, सिंथेसाइज भी कर रहा है, अप्लाई भी कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हें रियल लाइफ में यूज भी कर रहा है। सो अलग अलग तरीके की कॉग्निशन एबिलिटीज, लॉजिक्स अप्लाई करना या थिंकिंग प्रोसेस को और अच्छे से जनरेट करना, डेवलप करना, तो वो एक्स्ट्रा कॉग्निटिव एबिलिटीज भी उसमें हमें देखने को मिलेंगी। इट सेट स्टेजेस फॉर एंटरिंग इनटू द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो हमने पहले भी बात करी है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि विदाउट we can say the surpassing of any level cannot lead you to the next level. So we cannot surpass any level. ऐसा नहीं है मेमोरी से सीधा रिफ्लेक्टिव पे जाएंगे या मेमोरी को स्किप कर देते हैं, सीधा अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्टिव करते हैं। नो, एवरी लेवल इज बेसिकली अ स्टेप टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सो हमें उस लेवल को अच्छे से कर लेना है, ताकि जब हम अगले लेवल पर मूव करें सो हमारे पास वो एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जो हमें लीड करने में हेल्प करे। इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन है, क्योंकि डिस्कशन हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट का एक हेल्दी रिलेशनशिप हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। एक डाउट एक्सचेंज जो है या रिस्पॉन्सेज जो है वो बहुत अच्छे से हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं टीचर स्टूडेंट के बीच में, तो उससे जो हमारा क्लासरूम है वो काफी हेल्दी इंटरेक्टिव हो जाएगा। नाउ कम्स द डिसएडवांटेजेस। बहुत हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज को ये अभी इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन पर जाने के बाद ही आ सकती हैं। जब बच्चा अब फ्री है, नाउ ही इज फ्री, ही नोज हाउ किसी भी चीज को कैसे करना है, ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कहाँ पे मैं ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ। सो जब वो फुल्ली ग्रोन, फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा मेंटली, तो तब ये कॉग्निटिव एबिलिटीज उसमें आएंगी। एट दिस लेवल वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि किसी भी तरीके की हायर कॉग्निटिव एबिलिटी बच्चों में हमें देखने को मिले। लेस एम्फेसिस और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये समटाइम्स इट कैन हैपन, क्योंकि जरूरी नहीं है ऐसा हो ही हो, बट समटाइम्स इट कैन हैपन कि हम देखें कि बच्चा जो है उसमें इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, उसे अभी भी बाहर से एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। सो इट कैन बी टीचर, इट कैन बी पेरेंट्स और इट कैन बी एनीवन, बट वो इन एक्सट्रिंसिक ही रहेगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना इंटरनली हम बच्चे को मोटिवेट करें कि नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर टास्क एंड यू हैव टू डू इट। नो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, डेफिनेटली जब बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी क्यूरोसिटी बच्चों में हमें देखने को मिलेगी, क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, सो फॉर अ टीचर इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू पे इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी चाइल्ड। टीचर सेंट्रिक हो सकता है एट सम पॉइंट, जहाँ टीचर को लगे कि नहीं अब बहुत ज्यादा हो रहा है एंड आई हैव टू कंप्लीट माय सिलेबस, तो मे बी वहां पर टीचर थोड़ा सा अपने एक्शन में वापस आ जाए और बच्चे के डाउट्स या क्वेश्चंस में भी वो थोड़ा सा इग्नोर कर दे। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टीचर टू टीचर, ही मे बी वो क्वेश्चंस ले सकता है और बच्चों के डाउट्स को रिजॉल्व कर सकता है। सो वो टीचर टू टीचर वेरी करेगा।
For all students to excel, teachers must learn about them and connect with each child. This is not just about finding out how they learn, but it is finding out who they are. So keep motivating your child and keep learning with them also. Thank you so much for watching. Do share, like, and subscribe this channel if you find the information useful.